So hello everyone. So here I am back with another video, and in previous video we were discussing about the case laws that were related to the capital punishment. So we have discussed about what are the various case laws in which the capital punishment was given by the Supreme Court, and what were the case laws in which the capital punishment was converted into the life imprisonment of the accused. Okay, so in continuation to that we will study some more case laws. Okay, and we will try to cover this capital punishment topic today only, and we will start with our life imprisonment. Okay, the imprisonment, okay, that is inclusive of both simple and rigorous and life imprisonment also. Okay, so now let's start with our today's case law. Okay, that is Sambal Singh versus State of Uttar Pradesh. So in the case of Sambal Singh versus State of UP, wherein the four accused Sambal Singh, Jagmohan Singh, Krishna Mohan Singh and Hari Mohan Singh murdered the three children of the Munshi Maul, deceased, the brother of Sambal Singh. So Munshi Maul, who is he? He is the deceased brother of the Sambal Singh only. Okay, so why he has killed? Because of a family land dispute. Simple. The session court found them guilty and High Court confirmed the sentence. However, the apex court observed that the age of four accused was not considered by the lower court. Sambal Singh was old and the other three were young. Therefore, the court reduced the punishment of death penalty to life imprisonment. So, what has happened in this case was like there were the four accused, okay, who killed the children of Munshi Maul, okay, because of a family land dispute. So, what happened? That session court found them guilty, okay, and they punished them with a life imprisonment, okay, and also it was followed by the High Court also. But in the apex court, okay, the apex court observed that the age of the four accused was not considered by the lower court. Okay, so what apex court told, that even Sambal Singh is older, but the other three accused are young. Okay, so that's why the punishment, okay, the punishment of the accused was reduced from capital punishment to the life imprisonment. So this what has also happened in the Nirbhaya case, okay, in which there were six accused, in which four of them were punished with the capital punishment and the rest two got life imprisonment, just because they were minor. Okay, they were young, they were minor. Okay, the age was less than 18 years. Okay, so now let's move on to a next case, that is Swami Shraddhanand, and it should be and instead of at the rate. Okay, and Murari Manohar Mishra versus State of Karnataka. Okay, so चलिए इसको भी समझते हैं. In the case Swami Shraddhanand and Murari Manohar Mishra versus State of Karnataka, the accused was the second husband of the deceased Shakira. Okay, जो accused है वो अपनी wife का second husband था. So क्या हुआ? The deceased came from a highly reputed and wealthy family. Okay, the accused murdered the deceased after a well-designed plan and executed it accordingly for attaining property which was on her name. समझ गए होंगे आप बात, यही कारण होता है सबसे बड़ा. So the session court ordered the death penalty and the same was confirmed by the High Court of Karnataka. Okay, however, the Supreme Court converted the death penalty to life imprisonment. Okay, now why? This is an important case from the point of view of sentencing and remitting the sentence. Okay, remitting and commuting, these are the two things, okay, in which the sentence can be reduced. Okay, so what are the different conditions in remitting and commuting? We will discuss it later on, okay, and further. Now the apex court clearly differentiated the sentence of imprisonment for life from ordinary life imprisonment and held that the remission is not applicable to the cases where the imprisonment of life is given as a substitute to the death penalty. It means the accused will be in imprisonment till his last breath. देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये केस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें तो जैसे आप समझ गए कि शकीरा था, उसका सेकेंड हस्बैंड था शकीरा का, और उसने उसका जो है वो किया, मर्डर किया. क्यों? ताकि उसकी वो वेल्थ पा सके. ठीक है, शी वॉज फ्रॉम अ रेप्यूटेड फैमिली, रेप्यूटेड एंड वेरी वेल्दी फैमिली. ओके, सो अभी क्या हुआ कि सेशन कोर्ट ने एंड हाई कोर्ट ने पता है अपना ऑर्डर सुनाया फॉर डेथ पेनल्टी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा क्या किया, उसकी जो डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कम हो सकती है. ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होती है वो ज़िंदगी भर के लिए रहती है, जब तक सांस ले सकते हैं.
फिर कभी आपने सुना होगा कि नहीं केवल 20 साल के लिए होती है, कोई कहता है केवल 14 साल के लिए होती है। ठीक है, तो क्या केस है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में आज, क्योंकि चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप इस केस को समझ पाएँ। तो ये दो चीज़ होती है, एक होता है रेमिट करना, एक होता है कम्यूट करना। ठीक है, रेमिट माने होता है कि अगर किसी को किसी भी तरीके की सज़ा मिली हुई है तो फिर वो उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है, वो सरकार के पास पावर होती है। ठीक है, कि जैसे सरकार जो होगी उनके पास पावर होगी कि वो उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं। ठीक है, रेमिट कर सकते हैं एंड कम्यूट भी कर सकते हैं। देखिए कम्यूट और रेमिट में क्या अंतर होता है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी को लाइफ डेथ पेनल्टी मिली है तो उसकी डेथ पेनल्टी को कम करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट सरकार करवा सकती है। ठीक, तो इसको बोलेंगे कम्यूट करना, कि सज़ा को लाइट कर दिया गया। लेकिन रेमिट माने क्या होता है कि सज़ा वही है, सज़ा का नेचर भी वही है, हेडिंग भी वही है, लेकिन बस समय को कम कर देना। जैसे किसी को 10 साल की रेगरस इम्प्रिजनमेंट हुई तो उसको रेमिट करके 5 साल की रेगरस इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है, लेकिन वो जो रेगरस इम्प्रिजनमेंट है उसको सिंपल नहीं किया जा सकता। ये कहता है रेमिटांस। और कम्यूट क्या बोलेगा कि सज़ा को ही चेंज कर दो या कम कर दो या हल्की कर दो, उसमें सिंपल भी हो सकता है। सो ये है। सो इसमें एपेक्स कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो सज़ा है इसने इसको ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तो कर दिया है, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, वो ऑर्डनरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता है और एनिमिशन भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, कि मतलब जो सज़ा है उसकी वो कम नहीं हो सकती है, वो सज़ा उसकी लास्ट ब्रीथ तक रहेगी। ठीक है, तो ये था इस केस का बहुत ज़रूरी मतलब पॉइंट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कोप। ठीक है, अब देखिए अब ये चीज़ है, जैसे आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि कोई कहता है उम्र कैद की सज़ा तब तक रहती है जब तक आदमी ज़िंदा रहता है, या आपने किसी को सुना होगा कि उम्र कैद की सज़ा तभी तक रहती है, उम्र कैद की सज़ा तभी तक रहती है या कि 20 साल तक रहेगी या केवल 14 साल तक रहेगी। तो ये बहुत बड़ा एक जो है डाउट है जो लॉ स्टूडेंट्स को अधिकतर रहता है। सो आज हम उसको भी डिस्कस करते हैं कि क्या था ऐसा, मतलब क्या चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले इसको समझते हैं कि कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, स्कोप द पावर ऑफ कम्यूटेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस में दिए पढ़ते हैं। आर्टिकल देखिए 72 में दिया है गिव्स पार्डनिंग पावर टू द प्रेसिडेंट। तो आपने सुना होगा कि किसी को अगर फांसी की सज़ा होती है तो वो प्रेसिडेंट के पास जा करके भी उसको माफ़ करा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास होता है कि पार्डनिंग पावर होती है। ये आर्टिकल 72 में डिफाइन है। तो उसमें क्या हुआ, अगर उसने पार्डनिंग के लिए प्रेसिडेंट मान जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी फाइनली उस पर फैसला दे देता है, तो फिर क्या होगा, उसकी जो फांसी की सज़ा हो गई वो कम होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो गई। सो ये क्या हो गया, कम्यूटेशन हो गया। एंड सेम पावर गवर्नर को मिलती है स्टेट लेवल पे, आर्टिकल 161। ठीक, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 161 एंड आर्टिकल 72 आर। अब क्या है भाई, अब प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और गवर्नर की पार्डनिंग पावर में क्या अंतर होगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट की पावर एग्जैक्ट गवर्नर को दे दी जाएगी। तो देखते हैं क्या अंतर है। आर्टिकल 161 इज़ नैरोअर देन आर्टिकल 72। ठीक, बहुत सीधी चीज़ है कि थोड़ा नैरो वे में है। आर्टिकल 161 जो प्रेसिडेंट को पावर दी है कम्यूटेशन की, वो बहुत ज़्यादा ही वाइडर स्कोप में है। नाउ आर्टिकल 72 कवर्स द पनिशमेंट sentenced by a court martial also. Okay, however governor is not entitled with such powers. नाउ कोर्ट मार्शल आप समझ रहे हैं जो डिफेंस में होता है। ओके, डिफेंस फोर्सेस में होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फोर्सेस होती हैं, पुलिस फोर्सेस, और इन सब में सेंट्रल पुलिस फोर्सेस होती हैं, उसमें हो, चाहे आर्मी में हो, नेवी, एयरफोर्स एंड दैट वन इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया। सो ऑल दीज जो ये जो फोर्सेस हैं, इसमें अगर जो कोर्ट मार्शल होता है किसी का और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है, तो केवल प्रेसिडेंट को ही पावर है उसमें कम्यूटेशन के लिए, बट गवर्नर को वहाँ पे नहीं है। सो दैट्स वाई कहते हैं कि गवर्नर की जो पावर है थोड़ा नैरो उसमें है, लेकिन प्रेसिडेंट की जो है वो वाइडर उसमें। नाउ आर्टिकल 72 कवर्स ऑल डेथ सेंटेंसेस, हाउएवर अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 161 डेथ सेंटेंसेस आर नॉट कवर्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बी पॉइंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके, देखिए अब हम लोग आ गए, हम लोग का जो कैपिटल पनिशमेंट है वो ख़त्म हो गया और अब हम लोग अपने नए पनिशमेंट को समझने के लिए आ गए, दैट इज़ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके, नाउ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 53 ऑफ द IPC। ओके, अर्लियर दिस वाज आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ठीक है, पहले क्या होता था कि पुराने समय जो हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ होता था, जिसमें आदमी को उठा करके
कहीं और भेज देते थे। फिर जैसे ब्रिटिश के टाइम पे अंडमान एंड निकोबार में सेलुलर जेल बना, जिसमें वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती थी कि वहाँ से ये हो जाता था कि अब आदमी कभी लौट के नहीं आ सकता। सो उस चीज़ को ख़त्म किया गया, तो एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लेकर के आया गया, उसका रिप्लेसमेंट किया गया। ओके, नाउ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ पनिशमेंट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 53 of the IPC. Earlier this was also known as transportation for life. This punishment is given for serious crimes wherein the convicted remains in prison until his her last breath. ओके, अब आप समझ गए होंगे। लाइफ देखिए साफ साफ इसमें सेक्शन 53 में भी ये चीज़ कही गई है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा वो तब तक जो भी प्रिजनर हो, जो भी प्रिजन में होगा, जो भी एक्यूज होगा, उसकी आखिरी सांस तक वो जेल में रहेगा। ठीक, नाउ अब देखिए सेक्शन 57 क्या करता है। Section 57 of the IPC is used when fraction of term of punishment need to be calculated. However, it is important to understand that this section does not give any implied or explicit right to the prisoner to reduce his life imprisonment to 20 years of the sentence. देखिए इसमें क्या होता है कि होता इसमें देखिए ये है कि सेक्शन 57 क्या कहता है कि एक तो देखिए जिससे कम्यूटेशन की बात हो रही थी, ठीक है, तो सेक्शन 57 ऑफ द IPC कहता है कि कभी फ्रैक्शन ऑफ टर्म को यूज़ करना हो, मतलब मान लीजिए किसी की सज़ा को कैलकुलेट करना हो कि अब जैसे इस देखिए सेक्शन 57 पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए होता है, ठीक है। जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो आपने पढ़ा कि जैसे पूरा अपना ज़िंदगी भर के लिए रहेगा, जब तक आदमी उसमें रहेगा, आखिरी सांस के लिए रहेगा। तो देखिए ये जो चीज़ है ये 20 साल वाली जो है, देखिए इसमें सेक्शन 57 में दी है। जो लोगों में डाउट रहता है कि जब भाई की जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया है वो आखिरी सांस तक के लिए रहती है, कानून में भी लिखा है, तो फिर ये 20 साल वाला क्या सिस्टम कहाँ से आ गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमेशा जो है केवल 20 साल की मिलेगी। सो देखिए ये जो 20 साल की जो सज़ा है ये कुछ ही सेक्शंस पे लागू होती है। देखिए लिखा है अंडर सम सेक्शंस लाइक सेक्शन 116, 119, 120 एंड 511 ऑफ द कोड। ओके, द प्रिजनर कैन आस्क फॉर अ रिलीफ अंडर दिस सेक्शन। ओके, द प्रिजनर कैन आस्क फॉर द रिलीफ अंडर दिस सेक्शन, बट ये सरकार के ऊपर होता है कि वो मतलब जो है इसमें करती है या नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि अटेम्प्ट टू गैंग रेप का है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ, किसी ने ऑफेंस किया है अटेम्प्ट टू गैंग रेप का, ठीक। अब अटेम्प्ट टू गैंग रेप सेक्शन 511 में आता है, ठीक है, आईपीसी के। सो देखिए 511 में जब वो आ गया तो अब इसमें क्या होगा कि 511 में जब आ जाएगी तो उन सज़ाओं में क्या होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो मिलता है लेकिन उनको जो है कैलकुलेट करना होता है कुछ फ्रैक्शंस में, ठीक है। उसमें टिल लास्ट ब्रीथ के लिए नहीं मिलता है, लेकिन उनको मिलेगा, उस जो है कम्यूट हो सकती है सज़ा, लेकिन वो एक फ्रैक्शन में कम्यूट होगी। तो आर्टिकल सेक्शन 57 जो है आईपीसी का वो ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसे जो है ऑफेंस किया है जो इन सेक्शन 116, 119, 120 एंड 511 में आता है, तो फिर उनको जो सज़ा मिलेगी तो जो भी उनका लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा वो हाफ उसका कर दिया जाए तो उतनी ही सज़ा उनको मिलेगी। सो अब ऐसे तो पहले से पता करना तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि आदमी कितना जी सकता है। कोई मान लीजिए 40 साल जेल में रह सकता है, कोई 10 ही साल रह सकता है, कोई 5 ही साल बाद मर गया पता चला जेल में, ठीक है, कोई 15 साल बाद मर गया। सो एक एवरेज मान के चला जाता है कैलकुलेशन के लिए कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का टर्म है वो 20 ईयर्स है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलरली इन्हीं सेक्शंस में, ज़रूरी नहीं कि हर उस जगह किया जाए, वरना तो फिर लास्ट ब्रीथ का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो ये जो कैलकुलेट किया जाता है ये केवल इन्हीं जो सेक्शंस में ऑफेंसेस हैं इन्हीं के लिए किया जाता है। सो अगर जब उसको 20 ईयर्स मान लिया जाता है कि चलो ठीक है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमने मान लिया कि चलो 20 साल होनी चाहिए कि 20 साल तो आदमी को रहना है, ये होता है एक एवरेज मान लिया। तो जब उसका हम हाफ कर दें मतलब 10 साल, तो 10 साल की सज़ा होगी अटेम्प्ट टू गैंग रेप या इन सब में आफ्टर कम्यूटेशन, ठीक है। और ये सरकार के ऊपर, ये प्रिजनर जो है इसके लिए मांग कर सकता है रिलीफ के लिए, ठीक है। नाउ देखिए एक और क्वेश्चन आ गया कि इज़ लाइफ सेंटेंस डज पीरियड ऑफ 14 ईयर्स। ओके, सो अच्छा देखिए एक स्लाइड अगेन लिख कर के आ रहा है स्क्रीन पे, प्लीज़ इसको आप लोग थोड़ा अवॉइड करिएगा, ये कुछ ग्लिच है आई थिंक ये रिकॉर्डर का क्या, तो ये भी थोड़ी देर में अपने आप चला जाएगा। ओके, सो इज़ लाइफ सेंटेंस
डस पीरियड ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। अब कहा जा रहा है क्या ये जो लाइफ सेंटेंस होता है जो दिया जाता है ये क्या 14 साल के लिए होता है या लास्ट ब्रीथ के लिए होता है, ठीक है। एक ये भी बहुत बड़ा डाउट है, एक 14 साल और एक 20 साल का। नौ देखिए क्या है। इन द केस ऑफ दुर्योधन राउत वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, द एपिक्स कोड क्लियरली स्टेटेड दैट रीडिंग सेक्शन 55 ऑफ द कोड एंड सेक्शन 433, इसमें 55, 433 एंड 4 एक्चुअली देखिए लिखा है ना इसमें, रीडिंग सेक्शन 55 ऑफ द कोड एंड सेक्शन 433 एंड 433A ऑफ CRPC, इसमें रेमिटेंस एंड कम्यूटेशन की बातें हैं, ठीक है। आप पढ़िएगा इसको CRPC में। और सेक्शन 55 में भी यही बात कही गई है कि गवर्नमेंट को इन सबको पावर है कि उसको रेमिटेशन या जो कम्यूटेशन वाला काम, रेमिटेंस एंड कम्यूटेंस वाला काम हो सकता है। तो चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ नॉट कन्फाइंड टू 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ओनली द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन कम्यूट द लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रिजनर, ठीक है। इस केस में बात कही गई। अच्छा देखिए एक केस मैं आपको भी और बताता हूँ, जैसे आपने सुना होगा जेसिका लाल मर्डर केस, जो बहुत ही मतलब फेमस केस है। उसमें जो एक्यूज्ड था मनु शर्मा नाम था उसका। सो मनु शर्मा भी जैसे एक बहुत बड़े लीडर का लड़का था, तो उसको भी जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया तब सरकार ने जोर लगा दिया उसकी सज़ा को कम्यूट करने का, ओके, रेमिट करने का, ओके। सो उसको जब सज़ा उसकी कम करी गई तो कम करते करते लाते लाते 14 साल कर दी गई। लेकिन कानून भी है कि अगर आपकी सज़ा कम की जा रही है, ठीक है, तो भी आपको मिनिमम 14 साल तो रहना ही रहना है जेल में। फिर भी वो 17 साल जो है वो जेल में रहा है, उसके बाद वो बाहर आ पाया, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये सरकार जो है केवल कर सकती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो सरकार देखती है कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। ऐसे तो नहीं उससे कोई गलत मैसेज जाएगा पब्लिक को, तो हर केस में सरकार ऐसा नहीं करती है ना, कि मतलब कि किसी भी केस में वो फिर कम्यूट ही करने लग जाते, तो क्योंकि फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। सी, the government can commute the punishment of life imprisonment to the imprisonment of term equal to or less than 14 years, okay, or if the prisoner exceeds 14 years of imprisonment then he can be released, ठीक है, ऐसा कर सकती है। Now in 1961 in गोपाल विनायक गोडसे, अच्छा 14 ईयर से कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा ऐसा केस होगा जिसमें समझिए बहुत ही कुछ ज़्यादा एक्सेप्शन होगा तभी होगा, वरना ऐसे कभी सरकार नहीं करती, क्योंकि सरकार को भी एक अच्छी इमेज पब्लिक में बना करके रखनी है। अगर वो ऐसी सबकी सज़ाएँ कम करती चलेगी तो फिर सरकार को भी इससे खतरा रहेगा, ठीक। और पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ इन 1961 इन गोपालन विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, द क्वेश्चन वेदर देयर इज एनी सेक्शन इन द लॉ wherein the life imprisonment would formal realization by the appropriate government can be automatically treated as one for a definite period came to the apex court, okay, as a question of law. Answering the question, अब आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। Answering the question, the court pointed out the observation made by the judicial committee which stated that the transportation for life shall be deemed to be transportation for 20 years. However, देखिए जो मैंने आपको बात बताई, however this does not say that it shall be deemed to be considered the same for all purpose, okay. Further, the provision which transportation for life has been amended to imprisonment for life can also not be put under section 57 IPC, ठीक। Therefore, a sentence of imprisonment for life or transportation for life must prima facie need to be considered as imprisonment for transportation for the whole life of the prisoner till his natural death. शुरुआत इसी से ही होगी, ठीक है। भले फिर वो सरकार के ऊपर है कि वो इसे कम्यूट कर दे, इसको रेमिट कर दे, कम कर दे, ठीक है, लेकिन जो शुरू में माना जाएगा वो यही माना जाएगा। वो कोई फिक्स्ड नहीं होता है कि अगर सरकार ने 14 साल कर दिया तो अब आगे से हर केस में हर चीज़ में केवल 14 ही साल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन कम्यूटेशन अंडर सेक्शन 55 इंडियन पेनल कोड 1860, ओके, एंड सेक्शन 433 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या है इसमें डिस्टिंक्शन, ठीक है, कि सेक्शन 55 IPC और 433 CRPC, क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ दी हुई है। चलिए पढ़ते हैं। सो देयर इज़ अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 55 IPC एंड सेक्शन 433 CRPC. Section 55 of IPC covers only the commutation of life imprisonment, okay, for a term not exceeding 14 years, ठीक। Whereas Section 433 of CRPC covers the following powers of commutation to the appropriate government. क्या है? Okay, so let's continue. However, both provision give power to the appropriate government to commute the sentencing of the offender without the consent of the offender. Okay.
तो क्या होता है कि जो ये जो प्रोविजंस हैं ये सरकार को पावर देती है कि वो कोई भी सेंटेंस जो होगा ऑफेंडर का वो बिना ऑफेंडर की कंसेंट से उसको कम्यूट कर सकती है, ठीक। फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्शन, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन ईदर बी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इफ द ऑर्डर इज पास्ड अंडर द मैटर विच इज एक्सक्लूसिवली कवर्ड बाय द यूनियन लिस्ट, then the central government will be considered as an appropriate government, or otherwise in all their cases state government will have the power to commute the sentence. Okay, so now let's move on to the another case. In the case of Harishankar Gaya Prasad Jaiswal versus state of Gujarat, okay, the Gujarat High Court observed that section 55 of IPC is independent of section 433B of CRPC. क्या हुआ था देखिए इसमें, लाइफ imprisonment means a sentence of imprisonment running throughout the remaining period of a convict's natural life, okay, till death, ये बात कही गई है। But in practice it is not so, okay, according to section 55 of Indian Penal Code, in every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years. Okay. Section 57 states that in calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. ठीक है। 57 भी जैसे देखिए मैंने आपको बता दिया था जिसमें उसको कैलकुलेट करते हैं, वो जो अलग सेक्शंस थे 511 के बारे में जिसमें हम लोगों ने बात किया था, एक तो वो चीज़ था और दूसरा था जिसमें 14 ईयर्स कर दी जाती है, ठीक है। सो इस केस ये भी केस बड़ा आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे को सेक्शन में कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में। देखिए कल भी मैंने एक केस को जो है स्किप किया था और आज मैं इस केस को स्किप कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी इस चीज़ को पढ़ें और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को जो है वो इस या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में करिए या फिर मेरे को आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं अपने जो भी ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे, सो जिससे मेरे को भी पता चले कि आप इस चीज़ों को समझ रहे हैं और आपको भी कुछ डाउट हो रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर तो इस केस में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, फिर इस केस को मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये जो टेक्स्ट का थोड़ा है टाइपिंग का एरर है थोड़ा, इसको प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ठीक है। ये जो टाइपिस्ट है उसका थोड़ा सही नहीं हुआ काम। नाउ KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट केस भी था ये। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड नॉट सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ओके। ये देखिए जो बात इसमें कही गई थी, ठीक है। नाउ इसमें मतलब इसमें क्या था कि लोगों ने क्या किया था, कम्यूटेशन हुआ, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में। लेकिन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में ऐसा नहीं है कि अगर किसी को दिया गया तो वो आराम से पूरी ज़िंदगी बस बैठ के बिताएगा, वो एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है कि वो पूरी ज़िंदगी काम करेगा और झेलेगा, ठीक है। ये कहना था इसमें, ओके। तो हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म हुआ, दैट इज़ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। हम लोग का कैपिटल पनिशमेंट यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दोनों ख़त्म हो गया। नाउ वील स्टार्ट विद द इम्प्रिजनमेंट दैट इज़ रिगरस एंड सिंपल, ओके। सो क्या कहता है हमारा रिगरस इम्प्रिजनमेंट, चलिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट को समझते हैं। Imprisonment may be rigorous with hard labor, okay, such as digging earth, cutting wood, etc. समझ गए, जिस imprisonment में आपसे hard labor करवाया जाए उसे कहते हैं rigorous imprisonment। जैसे गड्ढा खुदवा रहे हैं, लकड़ियाँ कटवा रहे हैं या ऐसा कुछ भी करवा रहे हैं तो उसको बोला जाएगा कि ये rigorous imprisonment है, okay। According to section 60 of IPC, in every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct in sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि सेक्शन 60 में ये कहता है कि जितने भी केसेस हैं जिसमें ऑफेंडर पनिश किया जाता है इम्प्रिजनमेंट से, ठीक है, वो चाहे जितने भी मतलब उस समय का हो, ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट जो होती है उसके ऊपर होता है, ठीक है, जो उसको सेंटेंस करती है ऑफेंडर को, ठीक है, तो उसको करता है कि जो उसकी जो भी सज़ा है वो होली रिगरस है या सिंपल है या कब तक के लिए रिगरस रहेगी, ये सब कुछ जो है उसके उसमें होता है डिसाइड करने के लिए, ठीक है। या फिर जो भी पनिशमेंट है वो पूरी सिंपल ही होगी, ठीक है, या कुछ पार्ट उसका इम्प्रिजनमेंट का होगा जो रिगरस होगा या कुछ होगा जो सिंपल होगा, तो ये सब का जो है ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे रहता है, ठीक। नाउ द इंडियन पेनल कोड प्रेस्क्राइब्स इम्प्रिजनमेंट एज इम्प्रिजनमेंट फॉर, ओके, इम्प्रिजनमेंट किसको किस किस चीज़ों में इम्प्रिजनमेंट होता है, ठीक है। द इंडियन पेनल कोड प्रेस्क्राइब्स इम्प्रिजनमेंट एज पनिशमेंट फॉर
गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस, समझ गए होंगे आप। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, ओके, सेक्शन 449। तो इन सब में रेगरस इम्प्रिजनमेंट मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है मतलब वैसी वो है मतलब ऑफेंसेस हैं, ठीक है। आप कोई फॉल्स एविडेंस दे रहे हो जिसके कारण किसी का कन्विक्शन हो जाए, ठीक है, उसको कैपिटल ऑफेंस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सो ये आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो, तो इसके लिए आपको रेगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। या आप किसी घर में घुस जाओ जबरन उसको मारने की नीयत से या कुछ भी करने की नीयत से, तो इसको भी जो है हमेशा रेगरस इम्प्रिजनमेंट में जोड़ा जाता है, ठीक है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद आर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, है ना, देन फॉलोड बाय फाइन एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। सो इसको हम लोग जो है अपना कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको कुछ भी डाउट रहेगा इसमें तो फिर आप हमको कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई प्रीवियस वीडियोस में अगर कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जो मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उसको पूरा कर रहे हैं, अभी तक तो चार स्टूडेंट्स हैं जो उसको असाइनमेंट्स को भी पूरा कर रहे हैं। सो आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करिए, और इस सेमेस्टर में क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका लास्ट सेमेस्टर है, और हम चाहते हैं कि आप भी इसको अच्छे से पढ़ करके अच्छे से मार्क्स लेकर के आएँ, ठीक है। इसलिए जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अपने लिए मेहनत करना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।